লৈছো দিল্লীৰ যি জাহাংগীৰপুৰীত হনুমান ৰেলীৰ সময়ত যি সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাক লৈ এবাৰ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে। ওৱেইছিয়ে মন্তব্য কৰি কৈছে যে সমগ্ৰ ঘটনাক একমাত্ৰ মুছলমান লোকসকলক টাৰ্গেট কৰি দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এইদৰে হৰব হৈ পৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছি। পাৰ্চন টাইমত এই মুহূৰ্তত জনাই আছো অনুমতি অবিহনে কিয় বাহিৰ কৰা হৈছিল দিল্লীৰ হনুমান জয়ন্তীৰ শোভাযাত্ৰাৰে প্ৰশ্ন কৰিছে AIMIMৰ নেতা আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। হাতত তৰোৱাল আৰু পিস্তল লৈ হনুমান জয়ন্তীত কিয় ৰেলী কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল সংবাদমেল পাতি জাহাংগীৰপুৰীৰ সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ ঘটনাক লৈ হৰব হৈ পৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছি। হাতত তৰোৱাল তুলি লোৱাটো ধৰ্মীয় স্বাধীনতা নেকি? ওৱেইছিৰ তৰফৰ পৰা এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছত ওৱেইছিয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৈছে যে শোভাযাত্ৰাত মুছলমান লোকৰ বিৰুদ্ধে কিয় প্ৰৰোচনামূলক ধ্বনি দিয়া হৈছিল। কেৱল সিমানেই নহয়, ওৱেইছি আন কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ আনে আৰু তাৰ পিছত আটাইতকৈ ডাঙৰ অভিযোগটো আনি কৈছে অকল একমাত্ৰ 14 গৰাকী মুছলমান লোককহে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। এই প্ৰশ্ন আছাদুদ্দিন ওৱেইছি। আনহাতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত আনছাৰৰ পক্ষতো আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে থিয় দিছে। আনছাৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আদালতলৈ নিয়াৰ সময়ত আনছাৰে পুষ্পাৰ এক বিশেষ ষ্টাইলো দেখুৱাইছিলে, কিন্তু সেই আনছাৰৰ সমৰ্থনত থিয় হৈ ওৱেইছিয়ে কৈছে যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ একপক্ষীয় তদন্ত কৰিছে আৰু এই তদন্তৰ জৰিয়তে মুছলমান লোকসকলক টাৰ্গেট কৰা হৈছে। চৰকাৰে যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হয় বুলি AIMIMৰ নেতাগৰাকীয়ে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। দিল্লীৰ জাহাংগীৰপুৰীত যি হনুমান শোভাযাত্ৰা হৈছিল হনুমান জয়ন্তীক লৈ তাৰ পাছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি। ওৱেইছিৰ প্ৰশ্ন, শোভাযাত্ৰা কৰাৰ সময়ত একাংশ লোকে মছজিদৰ ওপৰত কিয় পতাকা লগায়? এই প্ৰশ্ন ওৱেইছিৰ তৰফৰ পৰা উত্থাপন কৰা হৈছে। সেই অঞ্চলটোত দুটাকৈ শোভাযাত্ৰা শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈ গৈছিল, কিন্তু তৃতীয়টো শোভাযাত্ৰা যোৱাৰ সময়তহে কিয় সাম্প্ৰদায়িক হিংসা হ'ল বুলি ওৱেইছিৰ তৰফৰ পৰা আজি প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰা হৈছে। ওৱেইছিয়ে বহু অভিযোগ আনিছে। ওৱেইছিয়ে আজি সংবাদমেলত কৈছে যে মুছলমান লোকসকলক টাৰ্গেট কৰা হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আৰু সেইবাবেই দিল্লীৰ আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ কেৱল মাত্ৰ মুছলমান লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ইয়াতে ক্ষান্ত হোৱা নাই ওৱেইছি। অৰবিন্দ কেজৰিৱালকো সমালোচনা কৰিছে ওৱেইছিয়ে, কৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুছলমানলৈ সকলো দুখ ঠেলি দিছে আৰু এইদৰে জাহাংগীৰপুৰীৰ যি সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ ঘটনা হৈছিলে, হনুমান জয়ন্তী ৰেলীত যি শিলাবৰ্ষণ কৰা হৈছিলে, আক্ৰমণ হৈছিলে, গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, তাক লৈ আছাদুদ্দিন ওৱেইছি হৰব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ লগত ওৱেইছিৰ সেই মন্তব্য আছে, মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। वन साइडेड अरेस्ट किए जा रहे हैं मुसलमानों की। मैं ये चार्ज लगा रहा हूं दिल्ली सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, दिल्ली के पत्रंबाजी के ऊपर। आपने 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, उसमें से कई जुवेनाइल हैं। क्या कर रहे हैं भाई आप? 14 के 14 को पकड़ लिया और एक लड़का है भाई वहां पर बगैर परमिशन के जुलूस जाता है, हाथों में एक नहीं 100 तलवारें हैं, मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जाता है, वहीं से झगड़ा शुरू होता पूरा। मुझे पुलिस परमिशन नहीं दी, खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं, तो किस बुनियाद पर आपने उनको इतना बड़ा प्रोसेशन निकालने दिया? और हाथों में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 2500-300 तलवारें हैं, हाथ में कट्टा है, पिस्टल है। और ये बता, हम पूछना चाह रहे हैं लोगों से, क्या तलवार और ये तफंचा रखना क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है? क्या ERP है वो? हर जगह पर जहां पर प्रोसेशन जाता है, आप मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर झंडा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं भाई? आप बराबर अपना प्रोसेशन निकालिए, मगर प्रोसेशन में प्रोवोकेटिव नारे लगाना, देश में रहना है तो ये नारा लगाना पड़ेगा, मुल्ले काटे जाएंगे, मियां फुला फुला, ये कौन सा प्रोवोकेटिव नारे लगा रहे आप? और दूसरी बात यह है कि जब आपने वहां पर बगैर परमिशन की इजाजत दे दी, पुलिस ने इजाजत दे दी, आज कमिश्नर पुलिस कह रहे हैं, आपने 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, उसमें से कई जुवेनाइल हैं। क्या कर रहे हैं भाई आप? 14 के 14 को पकड़ लिया और एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है। क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते? क्या अमित शाह नहीं देखते? क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को मैंने क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहते।
भारत हमारा वतन है, उसको मैंने क्यों बनाते? वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने। आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश, बल्कि लगा देते हैं कई जगह पर, इस जगह पर भी लगाया गया। 2 प्रोसेशन पीसफुल चले गए, तीसरे में गड़बड़ कैसे होती भैया? तो ये सब चीजें, इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आ जाती है। और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो तो मुसलमानों को ब्लेम कर दिया। अब उनको शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देने के मुसलमानों ने पत्थर फेंके। चुनाव जब आते तो आप सबके वोट लेते, और जब ये मामला आया तो आप दिखाते अपना असली चेहरा। तो दिल्ली की जनता को यह भी देखना है मुख्यमंत्री का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये दोहरा चेहरा, कि फौरन इल्जाम लगा देते। अरे भाई, वहां पर बगैर परमिशन के जुलूस जाता है, हाथों में एक नहीं 100 तलवारें हैं, मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जाता है, वहीं से झगड़ा शुरू होता पूरा। सर, लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सरकार का वो होता है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के हाथ में है, और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि लॉ एंड अचानक से नहीं होती है। मैं आपको कई इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दे दूंगा। तो ये तो यूपी सरकार को बोलना चाहिए, अब चलाइए बुलडोजर, चलाओ बुलडोजर आशीष के घर पर, देखते हैं हिम्मत है तो तुम्हारी। तुम नहीं चलाओगे क्योंकि उसका नाम आशीष है, तुम उसके घर पर चलाओगे जिसका नाम अहमद है। चलाओ बुलडोजर, बताओ अपनी ईमानदारी को, तुम इतने हिम्मत वाले हैं तो। तुम नहीं चलाओगे उसके घर के ऊपर क्योंकि वो तेनी उसका नाम है, अहमद का होगा घर, तुम तोड़ दोगे अहमद का। यही तुम्हारी तरफदारी है, यही तुम्हारी बायसनेस है। चैलेंज कर रहा हूं, चलाओ उसके घर तोड़ो, चलो बुलडोजर ले जाके चलाओ उसके घर पे। नहीं चलाओगे तुम बुलडोजर, फूल बरसाओगे उसके ऊपर तुम लोग। मगर एक गरीब बच्ची जो बेचैनी के आलम में पत्थर फेंकी तो उसका घर तोड़ दिया आपने। एक की बेल सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर दी, मगर उसका घर आबाद है। एक गरीब का घर आपने बर्बाद कर दिया। आप जज बन गए ना। क्या बात है, दिल्ली की राजधानी में आप जुलूस निकालने देते ऐसे ही आप? अच्छा चलिए, आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। 2 प्रोसेशन पीसफुल गए नहीं गए वहां से, उस मस्जिद के सामने से, तीसरे में गड़बड़ कैसे हुई फिर? क्या दिल्ली की राजधानी में तलवार को लेकर फिर सकता है? अगर वही तलवार किसी मुसलमान के हाथ में आ गई तो? एक तलवार आने दीजिए, यहां पर एक नहीं 100 के हाथ में तलवारें हैं, कट्टा है, पिस्टल है, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप के आप नारे लगा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। अरे रिलीजियस प्रोसेशन है, राम के नाम पे निकाल रहे हैं, और उसमें गाली क्यों दे रहे हैं मुसलमान को? आप किसी मस्जिद पर, दरगाह पर झंडा क्यों लगा रहे हैं आप? क्या उत्तराखंड में आपने नहीं देखा कि दरगाह के ऊपर चढ़कर झंडा लगा दिया गया? वायलेंस को हम कंडेम करते हैं, वायलेंस की कोई इजाजत नहीं देता, मगर जब सरकार खुद खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है तो फिर ये तमाशा हो रहा है। तो दूसरी तरफ से भी तो वायलेंस हुआ, देखा एक आदमी ने तमंचा पकड़ा। आप पकड़िए ना, आप देखिए, आप लोग सुनिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने का विजुअल क्यों नहीं दिखाया जाता टीवी के ऊपर? मस्जिद के सामने वो गाने बजाए जा रहे हो, क्यों नहीं दिखा जाता मीडिया में? सिर्फ सोशल मीडिया पर क्यों आता है? मस्जिद के सामने तलवारें लहराई जाती हैं, मस्जिद के सामने ठहरकर मियां फुला फुला गाली दी जाती है। ये क्या हो रहा है फिर? आप क्या कर रहे हैं आप? अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो एक्शन लीजिए, कोई रोक रहा नहीं है आपको। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, मगर ये कौन सा है? आप तो सिलेक्टिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं। वो अंसार जो बच्चे को रोका समझाया, उसी को मैंने एक्यूज बना दिया। उसमें जुवेनाइल बच्चे हैं, उसमें आप वन साइडेड अरेस्ट किए जा रहे हैं मुसलमानों की। मैं ये चार्ज लगा रहा हूं दिल्ली सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, दिल्ली के पत्रंबाजी के ऊपर।